جو کبھی بہن، کبھی بیٹی، کبھی بہو اور ماں۔ بیٹی کے روپ میں ہو تو باپ کے لیے بے مثال پیار، بہن کے روپ میں ہو تو بھائیوں کے لیے تنہائیوں میں دعائیں مانگنے والی، بہو کے روپ میں ہو تو خدمت گزار بیٹی، اور اگر ماں کے روپ میں ہو تو اولاد پر جان نچھاور کرنے والی، جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ لیکن نصیر آباد، جعفر آباد، ڈیرہ مراد جمالی، اوسطا محمد اور بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں رہنے والی یہ عورت مظلوم بھی ہے اور ظلم کے خلاف کچھ کرنے سے بے بس بھی۔ 14 جولائی کو ایسی ہی 2 بے بس لڑکیوں کو موت کی نیند سلا کر منو مٹی تلے دبا دیا گیا، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ظالم غیر نہیں، اپنے ہی مضبوط خونی رشتہ دار تھے۔ فوزیہ اور فاطمہ کا تعلق بابا کوٹ تھانے کی حدود میں واقع میرواہ کے اس قریبی گاؤں سے تھا، جو اپنی نوکرانی جنت بی بی کے ہمراہ انگوری رنگ کی ٹیکسی نمبر AQF 184 میں اوسطا محمد آئیں۔ اوسطا محمد ان کے گاؤں سے قریب ترین شہر ہے جو ضلع جعفر آباد میں واقع ہے۔ جیو نیوز کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انہی کے قبیلے کے افراد نے بتایا کہ لڑکیوں نے گھر میں بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹر سے دوا لینے اوسطا محمد جا رہی ہیں، جبکہ دراصل لڑکیوں کی موبائل فون پر کچھ افراد سے دوستی ہوئی تھی اور انہی سے ملنے وہ اوسطا محمد آئی تھی۔ لیکن DIG پولیس نے موبائل فون کی بات یہ کہہ کر رد کر دی کہ اس علاقے میں موبائل کام نہیں کرتا۔ وہاں پہ 2-3 عورتیں گئی ہیں ہوٹل پہ، 2 ینگ تھی، ایک ایجڈ تھی، یہ پرائیویٹ ذرائع سے ابھی پتہ چلا ہے۔ اتنا تو ثابت ہوا ہے کہ وہ ہوٹل میں گئی ہیں اور واپس آئیں، ٹھہرنے کا ثبوت نہیں ملا ہے، ٹھہری نہیں ہے، وہاں گئی ہیں اور ان نے جو دوسرے قوم کے لوگوں نے دیکھا ہے، یہ جو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے انفارم کیا پیچھے ان کے گاؤں میں۔ حقائق تک پہنچنے کے لیے جیو ٹیم میرواہ کے پاس اس گاؤں تک پہنچی، جس سے ثابت ہوا کہ موبائل فون اس علاقے میں کام کر رہے تھے۔ لڑکیوں اور ان کے دوستوں کا میٹنگ پوائنٹ اوسطا محمد کا یہ الصدام ہوٹل تھا۔ یہ ہے اس ہوٹل کے ساتھ پتلی سی گلی جو اس ہوٹل کے عقب میں واقع رہائشی کمروں تک راستے کا کام دیتی ہے، اور خواتین عموماً ہوٹل کی پچھلی جانب پہنچنے کے لیے اسی راستے کو استعمال کرتی ہیں، اور یہ ہیں وہ کمرے جہاں ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے ان لڑکیوں کی لڑکوں سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ سڑک کی جانب ہوٹل کا ڈائننگ ہال ہے جس میں اکثر مرد حضرات بھرے رہتے ہیں، لیکن ہوٹل کے ڈائننگ ہال سے پچھلی جانب واقع کمروں میں آنے جانے والوں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، اور اوسطا محمد چونکہ یہاں کا قریبی شہر ہے، لہذا لڑکیوں کے قبیلے کے کسی فرد نے انہیں ہوٹل کے پیچھے کی جانب دیکھ لیا، اور موبائل پر ان کے رشتہ داروں کو اطلاع کی گئی کہ اپنی لڑکیوں کو سنبھالو، یہ کچھ لڑکوں کے ساتھ الصدام ہوٹل میں ہیں۔ جس کے کچھ ہی دیر بعد کئی گاڑیوں میں مسلح افراد نے ہوٹل کو گھیرے میں لے لیا۔ کارروائی دیکھنے کے لیے ہزاروں افراد ہوٹل کے باہر جمع ہو گئے۔ لڑکے موقع سے بھاگ گئے اور مسلح افراد لڑکیوں کو مارتے ہوئے گاڑیوں میں ڈال کر لے گئے، جنہیں بعد ازاں قتل کر کے عمرانی قبیلے کی رحمان زئی شاخ سے تعلق رکھنے والے ایک سردار کی زمینوں میں دفن کر دیا گیا، اور 1.5 ماہ تک قانون اور قانون کے رکھوالے اپنی بے چارگی پر نوحہ پڑھتے رہے، تاں کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے واقعے کا نوٹس لیا اور اپنے آرڈر نمبر 395660 RB کے ذریعے FIR درج کرنے کا حکم دیا۔ یہ کیس بھی جو ہے نہایت سنگین قسم کا ہے، اس میں بالا افسران باہر سے سب کچھ کر رہے ہیں، میرے علم میں کچھ بھی نہیں ہے، اور FIR درج ہوا ہے 23 اگست کو۔ FIR درج ہونے کے بعد جو بھی کارروائی ہے وہ سیکریٹ ہے، جو بھی تفتیش ہوا ہے میرے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے۔ بلوچ قبائلی سردار اس واقعے کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بلوچی روایات کے خلاف زبان درازی کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے بلوچ روایات کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ اس کو اتنا ہوا دیا گیا ہے۔ پنجاب میں اخباروں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ادھر کوئی ہیرو اینڈ کرائی نہیں ہے، ادھر پکچر کے تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ صحیح چیز ہے، کاراکاری مسئلہ ہے، یہ صحیح ہے، بلوچی اسٹم رواج ہے، یہ صحیح ہے،
हम तो सही चाहता है, फिर तुम्हारे लोग को पता नहीं है हुकूमत को सही चाहता है या सही नहीं चाहता है। जो आदमी अपने आँखों से देखे या उसको मार देना हमारे बलोचों का रवाज है। ऐसे नहीं यार, ये ऐसे शक बिना वो गलत है। कानून के हवाले करना सही होता है, क्योंकि खुद लड़ने से ऐसे दुश्मनी बढ़ जाती है, लड़ाई बढ़ती है, ऐसे जो है ना क्या कहते हैं, ऐसे दुश्मनी भी हो जाती है, हालात बिगड़ जाते हैं। उसको अच्छा ये कि कानून के हवाले कर दे। कत्ल की गई दोनों लड़कियों का ताल्लुक उमरानी कबीले से है। उमरानी कबीले की मुख्तलिफ शाखें हैं, जिनमें रहमान ज़ई, तंगियानी, जोंगानी, भिरियानी, पिलियानी, गिनियानी, पिरोज़ानी शामिल हैं। उमरानी कबाइल की इन तमाम शाखों में रहमान ज़ई और तंगियानी कबीले को बाकी तमाम कबाइल पर बरतरी हासिल है। उमरानियों के सरदार भी इस वक्त रहमान ज़ई कबीले से सरदार फ़तेह अली हैं, जो माली हैसियत से इंतहाई मुस्तहकम हैं और लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन के मालिक और इस वक्त नसीराबाद के ज़िले नाज़िम हैं। मुबैना तौर पर ज़िंदा दरगोर की जाने वाली दोनों लड़कियों का ताल्लुक भी इसी रहमान ज़ई कबीले से है। कराइन बताते हैं कि दोनों लड़कियां किसी अहम और मुतमव्विल घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, जो मोबाइल फ़ोन भी रखती थीं और जिनके घर में नौकर भी काम करते हैं। उमरानी कबीले के सरदार फ़तेह अली से वाक़े पर उनका मौक़िफ़ जानने के लिए जियो की टीम उनके मेहमान खाने तक पहुंची, लेकिन वाक़े के बाद खुद सरदार साहब और उनके मुंशी और दूसरे करता धरता भी मंजर से गायब हैं। वहाँ मौजूद एक दो निचले मुलाजमीन ने बताया कि सरदार साहब आजकल यहाँ नहीं होते। सरदार के मेहमान खाने के पिछले हिस्से में इनकी ज़ाती रिहाशगाह भी खाली थी, ताहम सरदार साहब के बहुत से पालतू हिरन हमें ज़रूर दिखाई दिए। कबायली रिवायात ने गैरत के नाम पर दो मासूम जानों की ज़िंदगी तो ले ली, लेकिन हमें यह कबायली गैरत उस वक्त कहीं नज़र नहीं आई जब हमने सैकड़ों किलोमीटर के सफ़र में औरतों के खेतों में काम करते हुए देखा। मर्द या तो हमें होटलों और कहवा खानों पर बैठे नज़र आए या शहरों में वक्त गुजारते, जहाँ एक तरफ इस कत्ल को बलोच कबायली रिवायात का नाम देकर तहफ़्फ़ुज़ देने का जवाज़ फ़राहम किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब कुछ कबायली रहनुमा ऐसे कत्ल के बाद इसका ऐलान न करना और उसे छुपाने को बलोच कबायली रिवायात से मुतसादिम करार देते हैं। बलोची रिवायात में बड़ा मायूब उसको समझा रहता है, लेकिन उसके साथ स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन भी है कि वाहू जो है डिक्लेयर करना है कि फ़िलाँ को फ़िलहाल खुदा न खास्ता गैर औरत को गैर मर्द के साथ देखा, अगर उनको मार दिया ठीक है भाई, वो बाहू अगर नहीं करता और ऐसे किसी को मार जाता है तो फिर ये उसमें कि भाई तुमने क्यों वाहू नहीं किया, वो गिल्टी है। ये बेसिक एक चीज़ है। इस मामले में जो कसूरवार रियल कल्प्रिट है उसके साथ बेशक लड़ो, लेकिन नॉट विद एनीबॉडी एल्स। लड़कियों को ओस्ता मोहम्मद लाने वाला टैक्सी ड्राइवर शोबान चांडियो वाक़े के बाद मफरूर है, जबकि पुलिस ने टैक्सी को अपने कब्ज़े में ले लिया है और इसके मालिक को हिरासत में लेकर पूछगछ की जा रही है। पुलिस ने अब तक जिन मुलजिमान को गिरफ़्तार किया है उनके नाम ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया कि गिरफ़्तार किए गए अफराद दरअसल सरदारों के वो लोग हैं जो सरदार के कहने पर हर गुनाह अपने सर ले लेते हैं और जेल से रिहाई का काम सरदार का है। आला पुलिस अहलकारों के दफातर में साबिक और मौजूदा हुकूमत के वज़रा की तवील मुलाकातें ये साबित करती हैं कि ये लड़कियां किसी ऐसे बाअसर घराने से ताल्लुक़ रखती हैं जिनके हाथ बहुत लंबे हैं और जो इक़्तिदार की ऊंची बारगाहों और राहदारियों से रिश्ता रखते हैं। सियाहकारी और कारोकारी के नाम पर औरत का कत्ल बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में आम सी बात है। कंदकोट, जैकबाबाद, जाफराबाद, नसीराबाद और इन जैसे पसमानदा इलाकों में हर हफ्ते ऐसे 1 से 2 खूनी वाक़यात का होना मामूल है। यहाँ तक कि एक बार खेतों में काम करते हुए एक औरत ने अपना दुपट्टा सीधा किया तो उसके खावंद ने उसे और दूर से गुजरने वाले किसी मर्द को इस शक पर कत्ल कर दिया कि शायद उसने मर्द को कोई इशारा किया है। गैरत के नाम पर अपनी झूठी अना की रस्मों, रवाजों और रिवायात को मासूम औरतों का खून पिलाना और फिर इन्हें गुनाहों की गठरियाँ समझकर मिट्टी में दबा देने के पीछे असल वजह तालीम से दूरी और शूर व आगही की कमी है। इन इलाकों में तालीम का तनासुब इंतहाई कम है। गर्ल्स का 10 से 15% और बॉयज़ का 50 के लगभग हो जाता है। बच्चियां थोड़ी
उम्र के लिहाज से 5th के पास करने के बाद थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, और कल्चरल लिहाज से वो पेरेंट्स बॉयज़ स्कूल में उनको नहीं भेजते, क्योंकि गर्ल्स स्कूल बिल्कुल कम है। बलूचिस्तान में कत्ल का ये वाक़या इस लिहाज से मुनफरिद है कि इसमें न मुद्दई है, न मुलजिम है और न ही कोई वारिस। कत्ल का ये वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं, बल्कि ऐसे सैकड़ों वाक़यात हर देहात, शहर और कस्बे से मंसूब हैं। ये 70 साला शाहजहां बीबी है, जिसका जवान साल बेटा भी ऐसी ही एक कार्रवाई में कत्ल कर दिया गया, और इसकी FIR मादूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हुक्म पर दर्ज की गई थी। बाबा कोट में कत्ल की गई इन मासूम और मजलूम लड़कियों का वाक़या तो मंजर आम पर आ गया, लेकिन न जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो इंसाफ के इंतज़ार में मिट्टी में दफन हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि जिस मुल्क का मुनसिफ़ आला ही इंसाफ के लिए दरबदर हो, वहाँ मजलूम औरत को इंसाफ भला किस दर से मिल सकता है। सिंध और बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में औरत एक ऐसी मजलूम हस्ती है कि जिसका पुरसान हाल कोई नहीं। बाप और भाई जैसे मजबूत खूनी रिश्ते ही इनके मुनसिफ और कातिल ठहरते हैं। ऐसे माशरे में तालीम को आम करके इन्हें इज़्ज़त और तकरीम का मकाम दिलाया जा सकता है। कैमरामैन ताज अहमद के साथ गुलाम मुस्तफ़ा, जियो न्यूज़, कोस्ता मोहम्मद।